तो सभी बच्चों ने जो भी इन्वायरमेंटल डे की इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जितनी भी वीडियोस थी, उसमें जो विनर्स हैं उनकी वीडियो हम लोग डिस्प्ले करेंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोस्टर में पार्टिसिपेट किया था, पोस्टर कंपटीशन में, उनके पोस्टर भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। और बहुत ही अच्छा आप लोग ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं अभिषेक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप स्टार्ट करें। अभिषेक सर अनम्यूट कर लीजिए। Good afternoon, all students and faculty members. It is our privilege to welcome Dr. Pallavi Saxena. She is assistant professor in Hindu College, University of Delhi. Her works basically include on pollution, climate change. So, since we are celebrating this World Environment Day, it is very important and very interesting also to have Dr. Pallavi ma'am with us. And I request her that she please enumerate the importance of this day to our students so that they could understand its importance. And I would request ma'am to please start her lecture. Thank you so much, Dr. Abhishek. Thanks for introducing me. So today it's a very big day for the purpose of environment. So today we are celebrating World Environment Day, that is 5th June. And this is basically for the conservation of the environment, for the protection of the environment. And we are dealing with each and every sphere of the environment. Like the students know that there are 4 types of spheres: atmosphere, hydrosphere, biosphere, okay, and lithosphere. So actually my area of expertise is in atmosphere. So if we are talking in terms of air quality, then the air quality has been degrading very much since many decades, especially in metropolitan cities of India. So like I am living in the city Delhi. So Delhi, you know, is one of the biggest air pollution causing city. And it has been very much affected by different types of air pollutants. And it is very unfortunate to know that Delhi now ranks #1 in terms of air pollution. And that's why around 2013, WHO has declared air pollution as global burden disease. Okay, because many of the people has been affected from this. But today's my lecture is on the positive side of air quality, that is COVID-19 and air quality. So COVID-19 is a temporary, gift to air quality, because, during COVID-19, many of the restrictions have been posed by the government of India in terms of vehicles, in terms of industries. So everything has been locked down in the total India. And as the cases goes down, then gradually the things will become open. So the air quality has very much improved, okay, during the COVID-19 period. And that is the main focus of my lecture today. Okay, so in brief, my lecture constitutes, first of all, a very general introduction about COVID-19. Since I am not a medical expert, so I'm just giving you a brief about COVID-19, and I'm not going the detail into it. And then we will discuss about that what was the air quality till 2019. Okay, all over the India, and then we considering the Delhi also. Okay, and then in the 2020, what are the changes? Okay, so how the improvement occurs, not only in terms of air quality, in terms of human health also. Like you know that COVID-19 has directly impact the some of the important organs of our body, like lungs, okay, like central nervous system. Fine. So how this
health impact has been reduced and how the air quality has been improved. So these are the important points which we will discuss. So just give me 2 minutes. I am sharing the screen and then we will discuss in detail. एक मिनट मैम अलाउ कर। पल्लवी मैम, हेलो। Yes. जी पल्लवी मैम, आप थोड़ा सा हिंदी में बच्चों को बता दीजिए, थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा समझाने। ठीक है, थैंक यू मैम। यू कैन शेयर मैम, यू कैन शेयर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, विजिबल है। ओके, थैंक यू। सो टुडेज लेक्चर, मतलब आज जो मेरा लेक्चर है वो कोविड-19 और एयर क्वालिटी पे है। मतलब आपको पता है कि कोरोना वायरस एक बहुत महामारी है जो कि आजकल फैली हुई है और उसकी वजह से कैसे कैसे लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, लोग बहुत ज्यादा मर गए हैं पूरी ही दुनिया में। और इंडिया में जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से आपको अभी रिसेंटली पता ही है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। ओके, लेकिन मैं जो बात करूंगी आज मेरे लेक्चर में वो एयर क्वालिटी के संदर्भ में करूंगी। ओके, कि जो वातावरण है, जो कि एटमॉस्फेयर है, वो किस तरीके से जो है, जो उसका प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, वो कैसे कम हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जब मार्च 2020 में कोविड आया था, तब जो हमारी भारत सरकार है, आप याद करिए, उन्होंने काफी दिन तक जो है पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया था। तो जो व्हीकल्स हैं वो बंद हो गए थे, ट्रेन्स, बसेस और एयरपोर्ट्स, ये सब जो है बंद कर दिए गए थे। किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं चल रहा था। तो जो हमारा वायु प्रदूषण होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, वो बेसिकली जो है व्हीकल से होता है। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट से, जो यातायात चलते हैं, और जो इंडस्ट्रीज हैं, मतलब चिमनी है या फैक्ट्रीज हैं, उनमें से जो धुआं निकलता है उनसे होता है। ठीक है, तो ये सब जब बंद कर दिए गए थे तो उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है वो हर पोल्यूटेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम हो गया था। तो इस पे मेरा ग्रुप है, मैं और मेरा ग्रुप, हम लोग ने भी एक जो पर्सनल बेसिस पे स्टडी किया था और वो स्टडी भी मैं आपसे लास्ट में एकदम डिस्कस करूंगी, लेकिन बहुत ही ब्रीफ। ओके, सिर्फ 2-3 चीजें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है तो मे बी यहाँ पे सब लोगों को शायद उतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन मैंने वो अपनी स्टडी जो है लास्ट में रखी है कि काम करते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई आगे भविष्य में कोई स्टूडेंट है जो कि इंटरेस्टेड होता है काम करने में और उसको कोई इंटरेस्ट आता है, जैसे मैं आज लेक्चर में बताऊंगी, तो वो बात कर सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं कोविड-19, मतलब कोविड-19 है क्या, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो हम शुरू करेंगे कि कोविड-19 क्या होता है। So coronaviruses belong to the coronaviridae family in the nidovirales order. Okay, तो जो कोरोना वायरस होते हैं वो कोरोनावायरिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आप अगर स्कूल में आते हो या कॉलेज में आते हो या कहीं पर भी, तो ये पूछा जाता है कि भाई आप किस फैमिली से हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो इसी तरीके से ये जो वायरस है ये कोरोनावायरिडी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर है वो निडोवायरलिस ऑर्डर है। निडोवायरलिस ऑर्डर का मतलब है कि उस फैमिली में भी, मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो उन 4 लोगों में से आपका नंबर कौन सा है।
तो इसी तरीके से इसका जो नंबर है उसका पर्टिकुलर नाम ये दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, as you have seen in the picture that the by this name the corona has been given to it. Okay, because there are some spikes on it. आप देख रहे हैं कि एक गोल से जो है, तो इस वजह से इसके आउटर सरफेस पे, मतलब जो बाहरी सरफेस है उस पे ये जो थॉर्न लाइक के, मतलब कील टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, उस वजह से इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। ओके, तो ये जो कोरोना वायरस होता है सोच सकते हैं बहुत ही छोटा, इसीलिए ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखता। इट कैन नॉट बी विजिबल बाय अवर नेकेड आईज, फाइन, and contain a single stranded RNA as a nucleic material. So whatever the material, the genetic material which is there in the coronavirus is basically the single stranded RNA. आप लोगों ने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा 12th या 10th में जब आपको बायोलॉजी अगर जो है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कोविड-19 जो है वो आया कहां से है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ कोविड-19? So there are many tales of stories that the COVID-19 has come from the Wuhan market, from the seafood, or it is an accidentally explosion in a lab in Wuhan. Okay, तो इसके दो तर्क जो हैं, जो कि साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करे हैं और वो सामने आते हैं कि पहला तो ये जो है वुहान में, क्योंकि सबसे पहले आया था चाइना में जो जगह है, वहां पे जो सी फूड मार्केट है, आपको पता है कि चाइना में लोग जो है ओके, तो ऐसा एक स्पेशल मार्केट लगता है वुहान में। ओके, वहां पे लोग हर बार जाके जो भी उनको एनिमल पसंद आता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दे जस्ट पिक अप एंड बाय इट। ओके, तो ऐसा बोला गया है, मतलब कुछ स्टडीज में कि वहां पर जो बैट्स हैं या पैंगोलिन्स हैं, मतलब चिमगादड़, तो वहां से उन्होंने खरीदा, फिर उसको खाया और उसी में शायद कोरोना वायरस था, जो कि फिर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता चला गया। मान लीजिए किसी एक पर्सन ने खाया वहां पे खरीद के, और उस बैट में, उस चिमगादड़ में शायद वायरस था जो कि उस पर्सन में गया, फिर उस पर्सन से स्नीजिंग के थ्रू, कफ के थ्रू, खांसी के थ्रू वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो गया और इस तरीके से इन्फेक्शन फैलता चला गया। So till now the origin of COVID-19 is not very much clear because it has a two tale of stories. तो ये तो पहली मतलब संभावना है। और जो दूसरा है वो ये है कि वुहान की एक टेस्टिंग लैब है जहां पे इस वायरस को जो है मैनमेड बनाया गया है, और एक्सीडेंटली एक्सप्लोजन होने की वजह से वो वहां से बाहर निकल गया एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दीज आर द टू थिंग्स, बट देयर इज स्टिल नॉट अ वेरी मतलब कॉन्क्रीट सोल्यूशन, मतलब अभी तक कोई एक कॉन्क्रीट जो है, एक पुख्ता सबूत नहीं है। वी डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट प्रूफ येट दैट इट इज फ्रॉम अ नेचुरल ओरिजिन और वेदर इट इज फ्रॉम मैन मेड। तो इसका जो ओरिजिन है वो नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है, या फिर वो लैब में मतलब बनाया गया और फिर वो रिलीज हो गया। तो ये दो स्टोरीज हैं जो कि ओरिजिन ऑफ कोविड-19 में आती हैं। तो ये पिक्चर है जिसपे आप देख सकते हैं, दिस इज अ पाथवे ऑफ कोविड-19 टू ह्यूमंस, कि कैसे कोविड-19 जो है वो हम तक पहुंचता है। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। इसमें जो है कोरोना वायरस के भी अलग अलग टाइप के वेराइटीज होते हैं, जैसे कि अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा और डेल्टा। ओके, ये 4 वेराइटीज होते हैं। तो हर वेराइटी जो है वो ह्यूमंस तक नहीं पहुंचती है। जैसे अगर कोई कोरोना वायरस मान लीजिए एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, फाइन, और उसके अंदर गामा या डेल्टा वेराइटी है,
तो अगर वो हम तक पहुंचता है तो वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ जानवरों तक इम्पैक्ट करेगा, फाइन। लेकिन जो अल्फा और बीटा कोरोना वायरस हैं वो हम तक ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो जानवरों के थ्रू हम तक आ जाते हैं या फिर डायरेक्टली हम तक पहुंच जाते हैं, फाइन। सो दीज आर दी two things that you should remember, that alpha and beta coronavirus are those coronavirus varieties which are exactly being transmitted from the bats or camels or pangolins to us, and as compared to gamma and delta. तो ये तो अब काफी न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि व्हाट आर द ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स ड्यू टू कोविड-19 डिजीज। तो इसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए इसको नोवल कोरोना वायरस भी बोला जाता है, और साइंटिफिकली जो है साइंटिस्ट ने इसको सार्स CoV-2 का नाम दिया है। ओके, तो अगर ये 2 से 14 दिन में आपको ये पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट कफ, मतलब कफ जो है आपका काफी समय तक रहना गले में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सांस का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो रहा है तेजी से, then this is a clear cut sign that you are suffering from COVID. Then pain and tightening in the chest, अगर आपको चेस्ट में जो है पेन या फिर टाइटनेस सी लग रही है तो भी ये कोरोना वायरस का सिम्टम हो सकता है। फीवर है, फटीग मतलब वीकनेस, एंड अ लॉस ऑफ सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। तो अगर आपका जो टेस्ट और स्मेल लेने का जो सेंस है वो बिल्कुल चला गया है, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, so these are the different symptoms which may indicate that you are suffering from COVID. Okay, अब अंडर सीरियस कंडीशंस, मतलब मान लीजिए कुछ पेशेंट्स ने जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो हम फिर जो है कुछ और भी हो सकता है, तो ये 2 से 14 दिन के अंदर जो है बहुत सीरियस हो जाती है कंडीशन पेशेंट की, एंड देन दे विल हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द लंग्स। तो लंग्स पे एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये लंग्स को सबसे ज्यादा असर करता है, जिससे क्या होता है जो ऑक्सीजन लेवल है सबसे पहले वो आपका बहुत नीचे चला जाएगा। ओके, और आपको पता है कि ऑक्सीजन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। इफ द ऑक्सीजन हैज नॉट बीन देयर इन आवर बॉडी, देन अल्टीमेटली डेथ। ओके, सो दिस इज द क्लियर कट सिम्टम। तो वो ऑक्सीजन लेवल जो हमारी बॉडी में होता है उसको एकदम से वो डिक्रीज कर देता है। देन लंग इंजरीज, जो हमारे लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन कर देता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को पंप नहीं कर पाते हैं, फाइन। सो एंड अल्टीमेटली जो है pulmonary edema. Pulmonary is a word which is related with lungs, and edema is the initial stage of lung cancer. Okay, so in some of the patients the pulmonary edema can be caused, but in very serious conditions. So these are some of the human health impacts or the symptoms related to the COVID-19. Now there are some of the studies and some of the cases which recently been come up for the post COVID-19 impacts. तो आजकल जो है आप लोग काफी सुन रहे होंगे कि कोई पेशेंट है वो कोविड से सही हो गया है, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 से 2 महीने के बाद जो है उसमें दूसरे टाइप की जो बीमारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। जैसे रिसेंटली अभी फंगस जो है काफी चल रहा है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। तो ये एक टाइप की बीमारी है जो कि आंखों में होती है। तो ये अगर आपने इसका सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो ये आपको ब्लाइंड कर देगा, बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द रेटिना ऑफ द आई, फाइन। सो दिस इज the effect due to the medicines which are being given by the doctor, and this is the negative impact from the medicine.
तो ये कोविड का इम्पैक्ट नहीं है, जो कोविड के दौरान दवाइयां ली जाती हैं ये उसका जो है साइड इफेक्ट है। फाइन। तो बाकी और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, जैसे न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। देन लंग्स में जो है दोबारा से बहुत जल्दी इंफेक्शन होना और एक सीवियर निमोनिया हो जाना। ओके, देन मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिसेबिलिटी, पैरालिसिस होना। So these are the different things which can be possible in post-COVID conditions. तो ये जो है हमारे post-COVID impacts हैं। अब कोविड की वजह से कोविड-19 बेसिकली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बार बार जो है कोविड-19 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 जो है वो 2019 में पहली बार, दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान चाइना में डिस्कवर किया गया था। That's why it is called as COVID-19. Okay. So अभी तक ये काफी ज्यादा लॉस कर चुका है लाइफ और प्रॉपर्टी का। तो पूरे ही कंट्रीज में, मतलब ज्यादातर कंट्रीज, अबाउट 81 कंट्रीज में जो है काफी लोगों की जो जान है वो जा चुकी है, कम से कम 20 करोड़ लोगों की। और जो एवरेज एज है लोगों के मरने की वो है 16 ईयर्स। ओके, दैट इज द एवरेज एज जो कि पूरे वर्ल्ड की निकाली गई है कि जो एवरेज एज जो मरने की है वो क्या है, तो वो 16 साल है। और ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में, जो 44.9% ऑफ द टोटल YLL इज years of life loss can be attributed to the deaths of individuals between 55 and 75 years old, 30% to younger than 55 and 25% to those older than 75. Okay, तो 44% जो डेथ हैं वो 55 से 75 इयर्स ओल्ड के लोगों की हुई हैं, 30% यंग लोगों की जो कि 55 के करीब हैं, और 25% जो कि 75 साल से ऊपर है। तो फिर हमारी जो एवरेज फिगर निकाली गई है वो 16 साल निकाली गई। So this is all about the COVID. Okay, what is COVID? The general information, where it is come from, what are the different scientific theories, and what are the impacts, and what are the post-COVID and the after-all impacts. Fine. So COVID is one of the worst disaster in the 21st century. Okay, but on the other side, that is a positive side, is in terms of air quality. तो जो एयर पोल्यूशन है, मतलब जो वायु प्रदूषण है, उसका कोविड-19 पे क्या असर पड़ा है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इंडिया में जो पहला इन्फेक्शन आया था कोविड का वो 30 जनवरी 2020 में आया था, और 31 मई तक जो इन्फेक्शंस हैं वो 49% तक बढ़ चुके थे। फाइन। अब जो लॉकडाउन पीरियड था इंडिया में, लॉकडाउन पीरियड ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, मतलब 2020 की। सो द लॉकडाउन पीरियड इज इन फेज 1। सो फेज 1 इज द जनता कर्फ्यू, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीक से अप्रैल तक, और 21 दिन का वो कंप्लीट लॉकडाउन था जिसमें सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं चल रहा था। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, no shops open, nothing has been open, no work has been going on. तो उसमें जो उस पीरियड में जो NO2 emissions हैं, NO2 is a type of air pollutant, that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि व्हीकल से और इंडस्ट्रीज से सबसे ज्यादा एमिट होता है। तो उसका जो रेट है वो 17% डिक्रीज हो गया था फाइन उस पीरियड में। तो हमारी 17% जो एयर क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ NO2 वो इम्प्रूव हो गई थी। फिर एक साइंटिस्ट जो कि जैन और शर्मा है, उन्होंने भी ये बात बताई कि 14% चेन्नई में ओवरऑल एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है और 41% दिल्ली में इन टर्म्स ऑफ PM 2.5। नाउ व्हाट इज PM 2.5? PM 2.5 is basically, in general, you can understand it as a dust particle. तो PM 2.5 जो है पार्टिकुलेट मैटर है, मतलब डस्ट का पार्टिकल। फाइन। तो जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है, इतने जो छोटे कण होते हैं,
जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, अगर वो हमारे सांस के थ्रू लंग्स में अंदर जाते हैं तो वो लंग कैंसर कर सकते हैं। ओके, वो इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए जब हम ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम पार्टिकुलेट मैटर मतलब डस्ट पार्टिकल को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं, और जितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा उतना ही ज्यादा वो आपके लंग्स के लिए स्पेशली जो है वो हैजार्डस इम्पैक्ट जो है वो करेगा। फिर दिल्ली में भी 50% से ज्यादा एयर क्वालिटी मतलब नीचे गई थी इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 एंड PM 10। दीज आर द टू साइजेस ऑफ डस्ट पार्टिकल, 2.5 एंड 10 माइक्रोमीटर। जब हम बार बार एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, या फिर हम किस बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि इसकी एयर क्वालिटी, इस शहर की एयर क्वालिटी जो है खराब है या इस एरिया की एयर क्वालिटी अच्छी है। ओके, सो द एयर क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज गुड, द एयर क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज बैड। ओके, सो ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द स्केल? So the scale has been given by our national agency, that is Central Pollution Control Board. Okay, that is CPCB, which has the headquarters located in New Delhi. तो इसके जो headquarters हैं वो न्यू दिल्ली में है, और ये सबसे बड़ी एजेंसी है हमारे इंडिया में जो कि एयर पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं, नॉक्स है, सॉक्स है, मतलब NO2 है, SO2 है, ओजोन है, देन पार्टिकुलेट मैटर है, इन सब के वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो आप किस बेसिस पे बोलोगे कि पर्टिकुलर जो गैस है या जो पार्टिकल है वो हमारे लिए हार्मफुल है? तो उन्होंने कुछ परमिसिबल लिमिट सेट करी हुई है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं। अगर वो उन डिजिट से ज्यादा आता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि सीपीसीबी ने बनाया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके के कलर्स हैं। ओके, तो ये कलर्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 0 से 50 की रेंज में होता है तो उस एरिया की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब इट्स गुड, जो कि दिल्ली में पॉसिबल नहीं था अभी तक। 51 to 100 सेटिस्फैक्टरी, मतलब ठीक ठाक है। 101 to 200 is moderately polluted, मतलब थोड़ा pollution हुआ है। 201 to 300 that is poor air quality, then 301 to 400 very poor, and 401 to 500 that is severe। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 तक दिल्ली में या फिर बाकी सिटीज में, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में कानपुर है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये आगरा, ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इनमें ज्यादातर एयर क्वालिटी अभी तक पुअर से लेके सीवियर का जो आपको रेंज दिख रहा है, मतलब येलो कलर से लेके डार्क रेड, ये 3 कलर्स के ही बीच में रहता था। लेकिन जैसे ही कोविड आया और सब कुछ बंद हो गया तो एयर क्वालिटी जो है यहाँ से हटके जो शुरू की रेंज है आपकी 0 to 100 यानी गुड और सेटिस्फैक्टरी की रेंज में आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये जो चार्ट है वो डिफरेंट एयर क्वालिटीज बता रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोल्यूटेंट, कि अगर हम PM 10 लेते हैं तो क्या रेंज होगी, किस रेंज में हम बोलेंगे कि PM 10 के रिस्पेक्ट में जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी है या खराब है। तो ये हर पोल्यूटेंट वाइज भी इन्होंने इंडेक्स दिया है। अब इन इंडेक्स का मतलब क्या है? तो अगर गुड है तो मिनिमल इम्पैक्ट है, मतलब अगर बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है तो हमारे ऊपर एयर पोल्यूशन का कोई असर नहीं होगा। सेटिस्फैक्टरी है मतलब बाकी लोगों के लिए, जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो लोग थोड़े से भी बीमार हैं, यानी कि मान लीजिए जिनको पहले से अस्थमा है, ओके, तो उनके लिए जो सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी है वो उनको परेशान कर सकती है। और अगर वो वेरी पुअर है या सीवियर है तो फिर वो डेंजरस डिजीज प्रोड्यूस कर सकती हैं उन लोगों में भी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत हेल्दी हैं इन टर्म्स ऑफ लंग्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम,
But if the air quality falls in the severe range, then you are also affected. Okay, not only the unhealthy person, but the healthy person is also being affected. तो 2013 में जैसे मैंने आपको बताया कि WHO ने एयर पोल्यूशन को ग्लोबल बर्डन डिजीज जो है डिक्लेयर किया था कि ये एक टाइप की डिजीज है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, और ये 5th लार्जेस्ट किलर है इंडिया में। तो इंडिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं, फाइन, तो उसमें जो एयर पोल्यूशन का नंबर है वो 5th है। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं इंडिया में वो एस्थमा से सफर करते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जहां पे भी एयर क्वालिटी खराब होगी, जैसे कि सीवियर है या पुअर है, ओके, तो वहां पर जो है लंग कैंसर का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो जो जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, लंग्स के अंदर जो है कुछ ब्रांचेस बनी हुई हैं, फाइन। सो दीज ब्रांचेस एंड द रेड कलर एरिया is the accumulation of the dust particles inside the trachea. So this is the trachea, that is the branches which is inside the lungs and the bronchi. Now, what are the main reasons for the poor air quality? Okay, in many of the metropolitan cities of India like Kanpur, Lucknow, Varanasi, Agra, Delhi, Bombay, etc. So many of the auto rickshaws and taxis in India use adulterated fuel. तो जो भी टैक्सीज मतलब हमारे यहाँ चलती हैं या ऑटो रिक्शा चलते हैं, वो लोग एक जो मिलावट वाला तेल होता है उसको वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं ड्यू टू चीपनेस। मतलब वो जो है बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में, इसीलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो उसको खरीदें। लेकिन ऐसा फ्यूल भरवाने से जब बाहर धुआं निकलता है, आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे जाते हैं जिनमें जो धुआं होता है वो एकदम काले कलर का होता है, दैट्स वेरी ब्लैक इन कलर, दैट बिकॉज इट कंटेन्स सूट। तो वो अगर पार्टिकल्स आप इनहेल कर लेते हैं तो आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम से आपको लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली मतलब 1 या 2 साल के बाद अगर कंटिन्यूअसली वही हो रहा है तो लंग कैंसर में वो कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री है या पेंट इंडस्ट्री है, ओके, या केमिकल इंडस्ट्री है, उनको गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस दिए हुए हैं कि आपको जो है चेक करना है हमेशा कि जो भी धुआं निकल रहा है चिमनी से वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड ना हो। सो यू हैव टू अप्लाई द कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इन योर मशीन, ओके, सो दैट इट विल नॉट एमिट सो मच ऑफ स्मोक। लेकिन वो लोग ये रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। बाकी जो बड़े सिटीज हैं उनमें आपने देखा होगा जो ट्रैफिक जैम है उनकी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है। सो ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम द एयर पोल्यूशन इज मोर, व्हाई? बिकॉज जैसे ही धुआं जो है निकलता है, गाड़ियां वहीं खड़ी रहती हैं और उनका इंजन हमेशा ऑन रहता है। तो इंजन हमेशा ऑन होने की वजह से जो धुआं है वो लगातार निकलता रहता है एंड जो डिस्पर्शन होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम होता है। तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक है, जो पोल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Then the next is क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। आपने दिल्ली के बारे में पेपर में पढ़ा होगा कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की वजह से, एग्रीकल्चरल बर्निंग की वजह से हर साल सर्दियों में दिल्ली में स्मोक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका अभी तक कोई एक खास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और कुछ जगह है उत्तर प्रदेश में जहां से कि जब क्रॉप्स हार्वेस्ट करे जाते हैं और फिर उनको जलाया जाता है तो वहां से फिर धुआं दिल्ली तक ट्रेवल कर कर आता है और दिल्ली की एयर क्वालिटी को और खराब करता है। So these are some of the newspaper cuttings which are showing that and which are indicating the alarming that Delhi is the world's most polluted city. Then Delhi is a victim of 6 choke and it causes various types of diseases.
Now we are talking in terms of Delhi's air quality. Okay, so this is a graph. These are the readings which has been taken from the Central Pollution Control Board. Okay, because Central Pollution Control Board is one of the biggest agency which is doing continuous 24-hour monitoring of different types of pollutants. तो उन्होंने क्या करा हुआ है कि अपने जो मशीनें हैं, सैम्पलर्स हैं, उनको पूरी इंडिया में हर जगह रखा हुआ है और वो कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं अलग अलग पोल्यूटेंट की, जिससे हमें पता चलता है कि एयर पोल्यूशन का लोड इस पर्टिकुलर सिटी में कितना है। तो जैसे कि हम ये जो डाटा है ये 1999 से 2017 तक का है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड लिमिट है। तो जो नॉक्स है मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वो तो फिर भी कम है क्योंकि वो परमिसिबल लिमिट के जस्ट पास है, लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है मतलब डस्ट पार्टिकल, वो आप देख सकते हैं कि परमिसिबल लिमिट से एटलीस्ट 5 से 10 टाइम हायर है। So this is an alarming impact, especially for the respiratory system, that it will cause an harmful impact on the respiratory system of the people. Now this is a picture which is showing the high amount of concentration during the winter months due to agricultural burning. तो ये भी दिल्ली का ही ग्राफ है और इसमें जो ग्रीन कलर की लाइन है वो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा फायर इवेंट्स हुए, और जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है वो अगेन डस्ट पार्टिकल की है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है नवंबर का जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है, जब सर्दियां थोड़ी सी शुरू होती हैं, तो उस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन लोड होता है, क्योंकि यही वो टाइम है कि अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक में उसी समय जो है जो क्रॉप्स हैं उनको जलाया जाता है हार्वेस्टिंग के समय। तो इसीलिए और उसी टाइम पे हमारा दिवाली का फेस्टिवल भी पड़ता है, तो दिवाली और क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग ये दोनों की वजह से जो पोल्यूशन लोड है खास तौर से दिल्ली में वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये बता रहा है आपको क्लियरली कि कैसे जो है जो जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमारा पूरा साल होता है, लेकिन आप जो पीक्स देख रहे हैं वो आप विंटर मंथ्स में देख रहे हैं। तो बाकी जितने भी मंथ्स हैं समर वाले या मॉनसून वाले, उनमें जो कंसंट्रेशन है पोल्यूशन की वो कम है, लेकिन विंटर पीरियड में यानी अक्टूबर से वो अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो रहा है और फिर फरवरी में नीचे जा रहा है। ओके, so this is the indication clearly that is showing that how the winter periods are mostly being affected by different reasons. Not only we can blame the Delhi for that, but we can blame the neighboring states also for this. तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरे साल जो दिल्ली में सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो ट्रांसपोर्ट के, इंडस्ट्री के या फिर डोमेस्टिक सेक्टर्स होते हैं, लेकिन स्पेशली विंटर्स में जो ज्यादातर लोड है वो एग्रीकल्चर बर्निंग का रहता है, कम से कम 40% का। तो मोस्टली जो शेयर रहता है वो एग्रीकल्चर बर्निंग का रहता है एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। तो ये था हम लोग का अभी तक का कि किस टाइप से जो एयर क्वालिटी है इंडिया में, या मैंने अभी फोकस किया दिल्ली में, तो वो अभी तक 2019 तक 2019 तक वो कितनी खराब रही है। फाइन, अब हम बात करते हैं 2020 की, जब से कोविड स्टार्ट हुआ। So these are the different works which has been done by different scientists, and moreover our team also has done it, that I will conclude in the next part. So this is one of the study that is done by Sharma et al 2020, और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इंडिया के 4 जो ग्राफ्स हैं वो बने हुए हैं, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि जो एयर क्वालिटी है वो या तो बहुत अच्छी हो गई है, या फिर उससे हल्का जो ग्रीन कलर है, या फिर सेटिस्फैक्टरी रेंज में, या फिर मॉडरेट है जहां पे येलो कलर है। फाइन, सो मोस्टली
आपको जो रेड कलर है या डार्क रेड कलर है वो आपको कहीं नहीं दिख रहा है। So this is the impact, the clear impact of the total lockdown during COVID in the last year, that is 2020, जब just COVID start हुआ था। तो इसमें जो 30% रिडक्शन है एयर क्वालिटी का वो ऑब्जर्व हुआ था 2020 में एज कंपेयर टू दी अदर ईयर्स। तो इस स्टडी में कम से कम जो 22 सिटीज हैं ऑल ओवर द इंडिया वो लिए गए थे स्टडी के लिए। अब ये भी जो प्लॉट है जो ऊपर है और जो नीचे है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला है उसमें जो PM10 का कंसंट्रेशन है, इसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे जो मैंने अभी आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिखाए थे। तो जो रेड और डार्क रेड कलर है और ऑरेंज कलर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। दैट इज इंडिकेटिंग दैट द एयर क्वालिटी इज वेरी बैड इन व्हेन द लॉकडाउन वाज नॉट देयर। तो ये जो प्लॉट है वो 25 फरवरी का है, जब कोई भी लॉकडाउन नहीं हुआ था, जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो चल रही थी। और जो नीचे वाला ग्राफ है वो जो मैप है दैट इज ऑफ 21 अप्रैल 2020, मतलब जिस दिन ये कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा था। तो उसमें आप ज्यादातर पोर्शन दिल्ली के मैप में देख रहे हैं कि वो ब्लू कलर से कवर किया हुआ है। दैट इज इंडिकेटिंग टू अ वेरी गुड एयर क्वालिटी। तो ये भी सेम ग्राफ है, प्लॉट है जो कि दिखा रहा है बट इन टर्म्स ऑफ NO2। जो पहले वाला था, ये पहले वाला, ये आपको बता रहा था पार्टिकुलेट मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में। और ये वाला जो है वो आपको NO2 के कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा है। तो NO2 के कॉन्टेक्स्ट में भी सेम चीज है। जो पहले वाला मैप है दिल्ली का वो इन टर्म्स ऑफ तब का है जब कोई लॉकडाउन नहीं हुआ था, और नीचे वाले में आप क्लियरली देख सकते हैं कि NO2 की कंसंट्रेशन बहुत डिक्रीज हुई है। अब इसी तरीके का काम जो है हम लोगों ने किया था, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट डिपिक्टिंग द एयर क्वालिटी, कि बस हमने एयर क्वालिटी की बात हुई, लेकिन फिर हेल्थ पे क्या हुआ। जब एयर क्वालिटी अच्छी हुई तो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो ये हमारी टीम ने किया, मतलब मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हिंदू कॉलेज के वो, और हमने IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि CSR का इंस्टीट्यूट है, हम तीनों लोगों ने मिलके ये काम किया था। ये पिछले साल का काम है, जब जस्ट लॉकडाउन जो है शुरू हुआ था। तो हमने इसमें दिल्ली NCR, मतलब दिल्ली के 2-3 साइट्स, और NCR में हमने गाजियाबाद और नोएडा, और उत्तर प्रदेश में 4 जो है सिटीज लिए थे, मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिसमें कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, ये 4 हमने लिए थे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था स्टडी का वो ये था कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एयर पोल्यूशन की वजह से, या जब एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है तो लंग्स के अंदर जो है जो पार्टिकुलेट मैटर है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है, वो जब आप इनहेल करते हैं अपनी नोज के थ्रू, तो वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है अंदर जाता है लंग्स में, एंड देन वो वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। फाइन, क्योंकि हमारे जो नोज है उसमें जो नेचुरल फिल्टर है वो PM10, मतलब जिन पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है उसको रोकने के लिए तो है, लेकिन उससे छोटे अगर पार्टिकल हैं, 2.5 है या 1 है, तो जो फाइनर पार्टिकल हैं उनको रोकने के लिए नहीं है। तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट लंग्स में चले जाते हैं और फिर वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं, और अल्टीमेटली जो कि बहुत ही डेडली है, दैट इज लंग कैंसर। तो हमने इससे पता लगाया था, अपने कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हमने यूज करे थे, जिसके थ्रू हमने पता लगाया था कि भाई जब जो आजकल अच्छी एयर क्वालिटी चल रही है तो हेल्थ में, मतलब लंग्स के सेंस में क्या इंप्रूवमेंट आया है। तो ये मैप है जो कि दिखा रहा है कि हमने कौन कौन सी साइट ली। तो दिल्ली NCR, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। तो ये हमारे डिफरेंट फेजेस थे जो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टाइम पे इम्पोज किए थे। तो फेज 0, जबकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, नॉर्मल लाइफ जो होती है वो चल रही थी।
1 से 24 मार्च। फेज 1 जो है 25 मार्च से 14 अप्रैल मतलब 21 दिन तक रहा था, जिसमें आपका कंप्लीट लॉकडाउन रहा था, मतलब ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, प्राइवेट एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। फेज 2 जो कि 15 अप्रैल से 3 में 19 दिन का था, जिसमें थोड़ा सा अलाउ किया गया था, जैसे फार्मिंग ऑपरेशन, कुछ इंडस्ट्रीज का मूवमेंट। और फिर फेज 3 में जो है कुछ सिटीज को रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भाई फेज 2 में जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और कुछ व्हीकल्स की परमिशन है, और इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो है फेज 1 में भी अप्लाई किए गए थे। फेज 4 जो है वो 14 डेज का था, और जिसमें काफी रिलैक्सेशंस दे दिए गए थे कि जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से चल सकती है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ओके, आप किसी भी टाइम अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं, किसी भी टाइम बस चल सकती है, सो एवरीथिंग इज वेरी ओपन। एंड इंडस्ट्री, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको भी रिलैक्सेशन दे दिया था, उनको भी खोल दिया गया। तो इसमें हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डाटा है उसको लिया और फिर उसको एनालाइज किया इन टर्म्स ऑफ ओनली PM 2.5, मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जो कि लंग्स के लिए सबसे ज्यादा हैजार्डस होता है, उस पोल्यूटेंट का डाटा लेके हमने ये कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं AirQ+ और MPPD ये मॉडल लगाए, और इन मॉडल्स के थ्रू हमने ये पता करा कि कितना डिपोजिशन जो है उनमें है और कितना कम हो गया है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको PM 2.5 के कॉन्टेक्स्ट में जो है बता रहा है सॉरी, और इसमें एवरेज PM 2.5 मास कंसंट्रेशन लिया गया है डिफरेंट लॉकडाउन फेज में, जो कि मैंने आपको अभी बताया फेज 0 से लेके फेज 4 तक। और इसमें आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, नोएडा in terms of only PM 2.5, that how they are close to the permissible limit and in which cities they are crossing the permissible limit. तो इस फिगर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लॉकडाउन पीरियड, मतलब आप फेज 0 से फेज 4 तक अगर देखेंगे तो जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का जो कंसंट्रेशन है वो आपको हर सिटी में बढ़ता हुआ दिखेगा और परमिसिबल लिमिट से जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि तब व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया गया था। जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पहले कम हुए, फेज 1 में सबसे ज्यादा कम हुए जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन उसी के कॉन्ट्रेरी में अपोजिट में फेज 4 में दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए जब सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये प्लॉट भी जो है वो PM 2.5 मास कंसंट्रेशन का जो रिडक्शन है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो इसमें आप जितने भी सिटीज हैं उनमें आप देखेंगे कि PM 2.5 का जो है रिडक्शन हो रहा है। ओके, लेकिन कुछ सिटीज हैं जैसे दिल्ली है या आगरा है, उसमें जो है फेज 1 में, मतलब सॉरी फेज 2 में जब थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ था तब थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई है। और ये है हमारा आउटपुट जो कि मैंने आपको बताया कि हमने 2 मॉडल लगाए थे AirQ+ और MPPD, जिन्होंने ये बताया कि लंग्स में जो ट्रैंक्योब्रोंकाइल रीजन होता है, जैसे जो फिगर मैंने आपको दिखाई थी लंग्स की, उसमें आपको याद होगा कि ब्रांचेस जो है अंदर बनी हुई थी, सो दैट ब्रांचेस आर ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, और इसी में जाके जो पार्टिकुलेट मैटर है वो डिपॉजिट होता है। तो जितने भी फेजेस हैं उनमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं कि फेज 1 में है। तो सबसे कम डिपोजिशन पार्टिकुलेट मैटर का फेज 1 में था जबकि कंप्लीट लॉकडाउन था। मतलब उस समय अगर हम एयर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जितने भी हमने सिटी सिलेक्ट करे हैं उनमें लोगों को जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है विद रिस्पेक्ट टू एयर पोल्यूशन वो जो है बहुत कम हो गई थी एज कंपेयर टू फेज 4। फेज 4 में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली दिल्ली और आगरा, इन दोनों में जो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का वो बढ़ गया था। ओके, कैसे? क्योंकि फेज 4 में दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो ये जो निष्कर्ष है हमारी स्टडी का वो हमने निकाला कि
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो PM 2.5 के कंसंट्रेशंस हैं, वो एक सिग्निफिकेंट उनमें इम्प्रूवमेंट आया है, वो बहुत ज्यादा कम हुए थे। और पर्टिकुलरली फेज 1 पीरियड में जब पूरा लॉकडाउन था, तो दिल्ली एनसीआर में अप्रोक्सीमेटली 58.5% जो है डिक्लाइन हुआ एज कंपेयर टू द ईयर 2019। ओके और जो उत्तर प्रदेश में जो 4 सिटीज हमने सेलेक्ट करे थे, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, उनमें जो है 44.6% का रिडक्शन हुआ। इसी तरीके से जो ट्रैंक्योब्रोंकाइल रीजन है, मतलब जो लंग कैंसर के मैं बिहाफ पे बात करूं, तो लंग कैंसर जो है वो भी 30% के करीब जो है कम हुआ फेज 1 में, लेकिन फेज 4 में फिर से 12% तक बढ़ गया। तो ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, मतलब कि जब तक कोविड चल रहा है तब तक आपको पता है गवर्नमेंट चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखेगी, रोक लगा के रखेगी कि ये खुलना चाहिए, ये नहीं खुलना चाहिए, तो तब तक तो एयर क्वालिटी हमारी साफ रहेगी। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं मेरी स्टडी में भी या बाकी लोगों के स्टडी में भी, कि जैसे जैसे चीजें फिर से खुलना शुरू हो रही हैं, वैसे वैसे जो है फिर से पोल्यूशन लोड बढ़ जा रहा है। तो हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस सिस्टम को गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, और भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो हैं उनको लेके आना चाहिए। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स क्या है कि जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स जो हैं, यानी कि इथेनॉल है या मिथेनॉल है या बायोडीजल है, उनको यूज किया जाए रादर देन पेट्रोल या डीजल के अलावा, और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको चलाया जाए। अगर हम घरों की बात करते हैं तो घरों में जैसे लोग बाकी फ्यूल्स भी यूज करते हैं, विलेजेस में खास तौर से लोग चूल्हा वगैरह यूज करते हैं, तो वो कंप्लीटली हटा दिया जाए, सब लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाए, जिससे कि पोल्यूशन लोड कम होगा। उसके बाद रोड डस्ट कंट्रोल, तो कुछ मशीनें जो हैं गवर्नमेंट को इस तरीके से लानी चाहिए, जैसे कि बाहर के देशों में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो लोग हफ्ते में 2 बार उस मशीन को रोड पे लेकर आते हैं। उसका काम ये होता है कि जो भी डस्ट होती है उसको वो इकट्ठा कर लेती है। तो रोड डस्ट से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो व्हीकल्स के थ्रू जो है निकलती है, और होता क्या है कि वो रोड पे ही पड़ी रहती है। फाइन। तो ऐसे डस्ट जो है फिर उसका अल्टीमेटली फेट क्या होता है कि वो फिर एटमॉस्फेयर में जाती है और पोल्यूशन करती है। सो दैट इज वेरी डेंजरस। सो गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए। इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एनसीआर से उठा के एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए जो कि रेजिडेंशियल होम से दूर में हो, और जो पीएनजी एक्सपेंशन है उसको करना चाहिए। इसी तरीके से जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनमें जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, मतलब जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है, उसका भी एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना चाहिए। उसके भी एक प्रॉपर एमिशन स्टैंडर्ड बनाने चाहिए कि किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भाई क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सो these are some of the messages which I would like to give you. So thank you very much. Thank you very much, the organizing committee of Vision Institute of Technology, for Yes. inviting me and मैम स्टूडेंट giving कुछ me क्वेश्चन the। पूछना चाहें? हाँ जी, जरूर। स्टूडेंट अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में जाके आप लोग लिख सकते हैं, या आप हैंड रेज कर दीजिए, आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना आप लोग चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अमन पाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? म्यूट किया आपने। चैट में भी आप लोग लिख सकते हैं। मैम स्टूडेंट चैट में लिख रहे हैं क्वेश्चन।
Okay. Can we make a device for purify polluted air which is excreted from chimney? Okay. देखिए, हम कोई इस टाइप का पर्टिकुलर डिवाइस बना सकते हैं और अभी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर इन चीजों पे काम कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिवाइस मतलब मशीन बनाए जो कि कहीं पर भी लगाया जाए और वो टोटली जो स्पेशली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लें और बाकी जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो जाए. बट एज पर माई सजेशन, बिकॉज आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, okay, so my perspective is very much different because I am focusing on the sustainable technologies. देखिए, जो भी engineers हैं, I am not discouraging them. Yes, there are some people who can buy this machine, but not everybody has the money to afford this machine. तो कुछ plants हैं जो कि हम लगा सकते हैं, जैसे कि आपके अगर घर के पास बैनियन का ट्री है जो कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, आप अपने घर में ड्रेसिना का पौधा लगा सकते हैं, मारीगोल्ड मतलब गेंदा उसका पौधा लगा सकते हैं. ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि एयर को नेचुरली प्योरीफाई करते हैं और इसका कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इसको कोई भी लगा सकता है जिसके थ्रू हम एयर को प्योरीफाई किया जा सकता है इन द लॉन्ग रन. Can Covishield and Covaxin be mixed? I am sorry, I can't comment on this because मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जस्ट आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि कोविड-19 है क्या, क्योंकि वो मेरे लेक्चर का पार्ट था तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा, लेकिन मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं तो मैं इस चीज पे आपको नहीं बता सकती कि कौन सा वैक्सीन बेटर है. दैट इज नॉट, सॉरी, इट्स नॉट माय एरिया. मैम, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन कोविड एंड एयर पोल्यूशन? yes, my lecture is focus on that only, that if the there are many reports which are saying that if some people, अगर कुछ लोग जो हैं जैसे कि जो मास्क है उनको सड़क पे फेंक देते हैं, ओके, उनको डंप नहीं करते हैं, तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं और वो एयर में चले जाते हैं. तो ये भी एक तरीके की स्टडी है जिसमें कुछ स्टडीज हैं बोला गया है कि वो फिर एयर में ही रहते हैं और सिंस एयर में पहले से ही पोल्यूटेंट्स हैं तो वो पोल्यूटेंट्स के साथ स्टिक होके बायो एरोसोल टाइप का एक पोल्यूटेंट बनाते हैं और अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो हमें कोविड हो सकता है. बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द इम्यून सिस्टम, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द रेट एट विच द पार्टिकल्स कैन ट्रेवल. तो कुछ पार्टिकल्स हैं अगर वो बहुत हेवियर हैं तो वो ऑब्वियसली ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और कुछ पार्टिकल्स अगर वो लाइट हैं तो यस, दे कैन ट्रेवल एंड we can inhale it. So there is a possibility. Any more questions? स्टूडेंट और कोई पूछना चाहता है? नहीं तो हम लोग फ्रेंड कर सकते हैं. कमलेन सर, जो विनर्स हैं इनके नाम अगर हम लोग अभी अनाउंस कर सकते हैं, बाद में शाम तक हम लोग पोस्ट कर देंगे. जी सर. और स्टूडेंट अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से, काफी अच्छा से Nilesh Gupta, I have a question. Since flowing water has ability to absorb CO2, can we use water weight window in house to absorb CO2? Actually, water doesn't have the capacity to absorb CO2 totally because CO2 is actually a greenhouse gas and it acts as a sink. Yes, it can be absorbed in the oceans and seas, but not completely because it depends again on the
water system quality, that how it can absorb and how it is not. And there are many concepts which are behind that. What is the buoyancy of the water, what is the velocity of the water, and what is the concentration of the carbon dioxide. If the concentration of the carbon dioxide is approximately 10 times more than the permissible limit, then yes, some part of the it can be absorbed, but some part of it cannot be absorbed. थैंक यू। और किसी क्वेश्चन है कोई? रान सर, हेलो। पल्लवी मैम, दजवल सर भी हैं आज मीटिंग में। Okay. Hi, Dr. Dadival. सर आप अनाउंस कर सकते हैं रियान सर? हाँ कमलेश सर, आप वीडियो का और स्लोगन का जो विनर्स है उसको बोल दीजिए। अच्छा कमलेश सर, अलीगढ़ का कोई पोस्टर में नहीं है क्या? सर वो उसमें मतलब वो नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। Dr. Kamlesh, if not required, then can I please leave this meeting because I have another lecture after a few minutes. मैम को मैम अलाउ कर दिया जाए, मैम जा सकती हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करके विनर का बता देते हैं। ठीक है मैम। मैम ओके, Okay, thank you very much. थैंक ओके यू मैम, आपने समय निकाला हमारे Okay, कॉलेज thank के you. बच्चों के लिए, बहुत अच्छा Thank डिटेल you. में I आपने hope बताया। कि लोगों को समझ में आया बहुत होगा। अच्छा था मैंने मैम, कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा पूरा सेशन। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। कमलेश सर, हम लोग इसको शाम तक डिक्लेयर कर दिया जाए क्या बच्चों को अभी ठीक पोस्ट? है, ठीक है, बंद करिए। हाँ ठीक है स्टूडेंट, हम लोग शाम तक You- जो है